Okay, ma'am, your session is live, so you can start your session. All right, so a very good evening to you all. Good evening, ma'am. ओके सो पहले जैसे ये सेशन हुआ था कोविड से रिलेटेड, तब हमने इम्यूनिटी की बात करी थी लास्ट मंथ। आज जो हम बात करेंगे वो होगा पोस्ट कोविड केयर। पोस्ट कोविड केयर मीनिंग कोविड होने के बाद में हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, हाउ टू बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, एंड व्हाट एल्स, व्हाट अदर ट्रीटमेंट, व्हाट अदर डिजीजेस कैन हैपन जिससे कि हम बचे रह सके। सो हम वो डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख सकते हैं, या बीच में अगर आप कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं अपनी तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द सेशन विल बी कीपिंग अप अ क्वेश्चन आंसर टाइमिंग देयर, सो दैट आपकी कोई भी क्वेरी हो दैट आई कैन रिजॉल्व। सो आई क्विकली बिगिन विद दिस सेशन। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूंगी, आपको एक पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखेगा, and accordingly we'll proceed. Okay, so ma'am, would it be fine if I'll keep them all the participants on mute? Yeah, yes. Whenever they want to ask the question, they can write in the chat box. So I'll ask a question for them. Yeah. Yes. All right. I have a query here. I'm unable to share my screen. Okay, I'll just give you the rights. 1 second. Ma'am, you need to unmute yourself. Ma'am, now you can. I'm not getting an option here to share my screen. But I've given you the rights, ma'am. Yeah. And I've made you the co-host as well. I have camera, bookmark, UTRL, document, photo box, Google Drive. Oh, the option is not there here. Please recheck. Ma'am, I've given you the rights and I've made you the co-host as well. All right, so please guide me on this because I'm unable to find the option which is share my screen. Okay, so are you getting any option for I have options for Google Drive, Microsoft OneDrive, photo, document, URL, bookmark, and camera. This is all I can. But here from here. But I've chose the option that anyone can share the screen. I don't know why you're not getting the options. I'll just make you the host for a second. Okay. Then you check एक बार. Sure. Yeah, I've made you the host. Can you check now? Please. Box, photo, document. The option is not there. I'll just log out and log in then maybe. Then you have to make me the host first. Then you can log out. Otherwise, session will end. Yeah. All right. So please guide me on that too. Yeah. Just are you? My name is there, Rati, right? Mm-hmm. So more option will come. Mute and more. Just go on my name. You'll get few options. Make host, co-host, and all.
मैम मेरे नाम पे जाएंगे ना, रति के नाम पे जाएंगे, आपके पास एक म्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। मैम मेरे नाम पे जाएंगे ना, तो वहां पे मोर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो मोर के ऑप्शन में जाके यू विल सी द ऑप्शन मेक होस्ट, so just make me host. Yes, okay, done. So just re-log in and then we can see. ये वाला तो मेरे को समझ आ गया, सर्कल करने की क्रॉस करने। आजकल इसमें आवाज तो नहीं आ रही है। अभी अभी आएगी आवाज, होल्ड मत, चल रहने दो। सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट पे रख लीजिए। डॉक्टर अनामिका आपकी स्क्रीन शेयरिंग पे है। डॉक्टर अनामिका आपकी स्क्रीन शेयरिंग पे है। भारत गुप्ता के नाम से जिन्होंने लॉगिन किया, प्लीज आप म्यूट पे रख लीजिए।
हेलो हेलो रति। हाँ जी हाँ मैम। हाँ क्या हुआ आज? नहीं मैम, उनको कुछ ग्लिच है, वो ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है उनका। ओके, और कैसे हो? ठीक हो मैम? All right, am I visible? Yes ma'am, you are visible. Yes, so I've tried from another screen because उससे नहीं share हो रहा था. Okay, so abhi can you just check? Yeah, I'm doing that. Share a window or application that you want to share. Again, here also there is a problem coming up. Select a window or application that you want to share. Basic, advanced file, क्या आ रहा है? अरे आप तो वैसे स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। Ma'am, you are using laptop? Yes, I'm using my laptop. Yeah, you are using Zoom, na? Yes. Yeah. So there is one option you can share the window. Which window you want to share a PPT, na? Yes. Yeah. So when you click share the screen, there is 3 options. One is window, one is entire window, and one is a tab. Okay, okay. Yes, Yeah, yes, you're yeah. right. I got it. Yeah, right now, yeah. And don't forget to share the sound also. If you have any video. No, no. These are all presentation PPT. Yeah, yeah, yeah. presentation only. Then fine. Yeah, yeah. Yeah, it's visible properly. Yeah. All right, all right. So my Okay, screen thank is you, also Rupali ma'am. visible right now. Yeah, most welcome. Yeah. Okay, so I'll introduce a little about our clinic. Basically, where I work and what we run is root cure homeopathy. All right. So about myself, वैसे super moms को पता है, which I've already done a session already with you all last month. But still, to introduce a little more about me is I'm Dr. Anamika Jalandhar. I have passed out from Bombay, which is with homeopathic degree, BHMS. I work for obstetric and gynecology also, and currently I'm working for recent and post-COVID cases and their management through homeopathy. So basically, मैं जो फिलहाल जो काम कर रही हूँ या हम जो वर्क कर रहे हैं वो है recent COVID cases जो already COVID जिनको है उनके लिए भी and post recovery also with their management through homeopathic medicines. So this is what we are doing right now. Quickly beginning with the topic which is post COVID care. सो आज का जो मेन टॉपिक ही यही है कि कोविड के बाद हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, रिकवरी कैसे हो सकती है, बीमारियां क्या क्या हो सकती है, एंड हाउ टू प्रिवेंट दिस न्यू इलनेसेस। जैसे कि सबको पता है नई नई बीमारियां आती जा रही है कोविड के बाद ही एंड इन जनरल फॉर अदर पीपल ऑल्सो जिनको कोविड नहीं हुआ है उनके लिए भी। All right. So understanding नया वायरस ये नहीं है, स्ट्रेन फैमिली थी, पर इसी में से एक नया टाइप ऑफ वायरस आया। लास्ट ईयर पता चल गया हमें कि ये एक नया स्ट्रेन आया है क्योंकि डिस्कवर हुआ 2019 में, तो नाम दे दिया गया 2019 का। बट नाउ फिलहाल म्यूटेट हो चुका, इस साल भी ये चेंज हो चुका है, रेप्लिकेट किया है इसने, एंड इसका जो टाइप है वो थोड़ा चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गई। तो लास्ट ईयर इनफैक्ट जब इसके सिम्टम्स आ रहे थे, लाइक जब बीमारी थी तब भी, एंड आफ्टर द इलनेस ऑल्सो, पीपल विल नॉट हैविंग दैट मच ड्रेडफुल डिजीज। लाइक इनिशियली समझो आपको कोविड हो गया, लास्ट ईयर की अगर बात करें तो
रिकवरी जो थी वो लगभग 14 डेज में हो रही थी। कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा नहीं थे, जरूर थे, इतने ज्यादा नहीं थे, बट धीरे धीरे रिकवरी होती जा रही थी। बट नाउ दिस ईयर बिकॉज द वायरस हैज म्यूटेटेड, तो इसके सिम्टम्स भी बदल गए, चेंज हो गए, एंड एट द सेम टाइम इसमें एड ऑन जो चीज हो गई वो हो गई है पोस्ट वायरल कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम पोस्ट वायरल इलनेस कहते हैं। ये हर एक वायरस के लिए कॉमन होता है। जब भी कोई वायरस बॉडी में एंटर करता है, वो अपने जो साइड इफेक्ट्स है या अपने जो बॉडी में डैमेज करने का प्रोसेस है वो छोड़ के चला जाता है। यही चीज होती है हर वायरस के बाद। बट क्योंकि कोविड, ये जो कोरोना वायरस जो है लेटेस्ट वाला जो स्ट्रेन है, ये बहुत ज्यादा ड्रेडफुल हो चुका, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका, तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं वो भी काफी ज्यादा है rather than for the earlier year. So let us first understand what is this doing to your body. अगर हमें ये इन्फेक्ट हो जाए या हमें ये वायरस होता है तो ये क्या क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोना वायरस मसल में पहला वायरस, यहाँ पर असर आने वाले जो इसका ड्रॉबैक भी होता है वे में। या sorry for the interruption, but your voice is very cracking. Give me a minute. I think there is some network issue or what, but we cannot hear you properly. Give me a minute. Okay, so I've made the changes now. Am I audible clearly right now? Yes, now you are audible. Okay, all right. Whenever a virus enters your body, the way of entry is your nose and your mouth. So जब भी ये एंटर करेगा, एंटर करके सबसे पहला इन असर में तो आएगा ही, इट विल अफेक्ट योर नोज एंड माउथ ऑल्सो, बट it will directly going to affect your muscle layer first. And इसी वजह से जब भी हमें कोई वायरल सिम्टम आता है, फर्स्ट डे वी हैव अ सीवियर बॉडी एक और अ सीवियर बॉडी पेन फर्स्टली, और उसके बाद में एक एक करके सिम्टम्स आते जाते हैं। पहला बॉडी पेन होता है, फिर जुकाम हो गई, खांसी हो गई, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। दिस इज कॉमन फॉर ऑल वायरसेस, बट स्पेसिफिकली कोविड, स्पेसिफिकली कोरोना वायरस, ये डेडली ज्यादा है, इसकी इन्फेक्शियसनेस ज्यादा है, इसीलिए जब बॉडी एक भी होगा इट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन. So firstly, it will make you feel fatigue or a weaker sensation would happen. It will affect on your mucous membranes. Mucous membranes meaning जो inner lining होती है, हमारी nose की inner lining, हमारे throat की inner lining. So यहाँ पर असर करता है and it produces lot of mucus there. Either people can have dryness here or either we can have a mucus sensation as if गले में कुछ है, अटक रहा है, which we are unable to clear up. So ये चीज जरूर होती है इस वायरस के इफेक्ट के वजह से. Our senses get affected, which is smell and taste. So ये अफेक्ट हो जाएगा, स्मेल और टेस्ट आपका अफेक्ट हो जाएगा. लंग्स में अफेक्शन है इसका, as it can cause pneumonia and breathing difficulty. So लंग्स में इसका इफेक्ट है. अगर ये नोज के पैसेज के थ्रू लंग्स तक पहुंच गया तो इट विल कॉम्प्लिकेट इनटू निमोनिया एंड आपका ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब कर सकता है. At the same time, it can make your blood thicker.
जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है कॉल्ड डी डाइमर. दिस गिव्स द वैल्यू वेदर ब्लड हमारा थिक है या नहीं है, तो वो बताता है. सो ये थिकनेस क्रिएट कर सकता है ये वायरस, एंड it will disturb your sugar levels, can disturb your blood pressure and can affect your heart. So ये जो main चीजें, जो points यहाँ पे mentioned है, these are all the foremost and the core points which has affected all COVID patients, and इन्हीं points के हिसाब से affection क्या क्या हो रहा है उसके हिसाब से ही side effects या post recovery post COVID इन्हीं चीजों में problem आता है. Depends on the severity. अगर mild disease हुआ था तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हल्के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे. एंड अगर सीवियर प्रॉब्लम था, यू टुक टाइम टू रिकवर, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ फ्यूअर मोर सिम्टम्स rather than for the mild illness cases. All right. Also, I would like to add up here is ये तो हमने अभी का जाना कि फिलहाल क्या क्या अफेक्ट करेगा अगर बॉडी में एंटर करता है. तो सेम वे अगर बॉडी में एंटर कर गया तो पोस्ट रिकवरी में जैसा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर वीकनेस आपको क्रिएट होगा. मैक्सिमम ऑफ कोविड पेशेंट्स भले उनकी रिकवरी 15 डेज में हो गई है, 14 डेज में हो गई है, बट ये जो वीकनेस है दिस कैन स्टे फॉर एज लॉन्ग एज 9 months. मीनिंग अब तक के केसेस में, इनफैक्ट लास्ट ईयर ऑल्सो whoever was affected from this virus, जिनकी इम्यूनिटी कम थी, उनको काफी टाइम लगा फॉर रिकवरी, एंड दे हैड लॉट मेनी fatigue symptoms later on. Second points relating to mucous membranes. Here जैसे काफी लोगों में रिकवरी के बाद में इनिशियल 15 डेज ड्राइनेस रह रहा है. दिस इज द लेटेस्ट सिम्टम विच इज बीइंग ऑकरिंग टू नॉट मेनी ऑफ द पेशेंट्स. लाइक रिकवरी हो गई, सिम्टम्स हो गया, नेगेटिव आ गया, सब कुछ हो गया, बट स्टिल देयर इज अ सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस इन योर माउथ एंड नोज, और यू फील अ वेरी ड्राई लिप्स के कितना भी पानी पी लो, वेट कर लो, बट स्टिल यू फील ड्राइनेस हियर. और इधर ड्राइनेस के जगह पे यू कैन हैव अ म्यूकस सेंसेशन इन योर थ्रोट हियर. मतलब सेम चीज, आपको लगेगा कफ है, यू आर ट्राइंग टू क्लियर इट अप बट यू आर अनएबल टू डू दैट. सो दिस कैन हैपन. स्मेल और टेस्ट जो है ये चीज रिकवरी होने के लिए, लाइक आई हैव सीन पीपल who have return of smell and taste after 1 month, at least 1 month तक भी ये senses disturb रहते हैं. if not taken a proper treatment नहीं लिया या proper measures नहीं लिया तो उतना time भी लग सकता है recovery में. and pneumonia अगर cases है तो oxygen levels जो है उनको balance out होने के लिए time लग जाता है. जैसे many patients जिनका O2 level काफी कम हो गया था, they have been admitted in the hospital for oxygen therapy, and उसके बाद जब discharge होके आते हैं तो usually patients are discharged when their oxygen level comes around 90%. अगर समझो किसी का 85 था और उनको admit किया और फिर 90-92% पे आ गया, 90s के रेंज में आ गया, तो we tell them कि they are better and then धीरे धीरे करके recovery होगी. So this is what happens in post COVID. रिकवरी होने में ऑक्सीजन लेवल्स को नॉर्मलाइज होने को टाइम लगता है, एंड दिस इज वेयर we can help. Like this is where homeopathic medicines also can help you. So we'll discuss about homeopathy in the later slides. Also blood thickness पे अगर effect आ रहा है, blood thick हो रहा है, तो here also medicines, proper medicines can be taken. And along with that, blood sugar levels अगर disturb हैं, at the same time we can start up with the medicines which we have to control the blood sugar levels, because this is what is causing a major disease called mucormycosis. We'll discuss about that also in the coming up slides. All right, COVID symptoms and recovery. COVID symptom का जो recovery है, उसको लगभग usually it recovers within 14 days, which is what the standard WHO criteria says. But this can last to up till 21 days also. Meaning पहले ये 14 days में recovery हो जाती थी, आप अपने सही time पे medicine start कर दी, recovery हो गया. But now because second strain जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा deadly है, ये थोड़ा सीवियरिटी ज्यादा है, तो इसमें 21 डेज तक भी ये लंबा खींच सकता है. बट मेनी अ पेशेंट्स, अगर आप जैसे आई हैव लॉट मेनी क्वेरीज ऑन दिस कि हमें फर्स्ट तो पॉजिटिव आ गई रिपोर्ट, अब हम वापस कब रीचेक करवाएं ताकि वो नेगेटिव आए. सो हियर ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि वायरस कैन बी देयर इन योर ब्लड अप टिल 1 month. सो 1 month तक वायरस कैन कम पॉजिटिव
इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट इज नॉट नेसेसरी, बट मेनी केसेस जिनका सीवियरिटी ज्यादा था, मीनिंग सिटी वैल्यू अगर कम था, तो वायरस काफी लंबे टाइम तक ब्लड में शो करता है, ब्लड मीनिंग आरटीपीसीआर में शो करता है इन योर टेस्ट. So usually recovery can happen within 14 days, can last till 21 days, but the test reports can be positive till 1 month. What new diseases can develop after COVID here? So हमें क्या ऐसी diseases हो सकती हैं after COVID, which would be first of all is diabetes. Diabetes ऐसे पेशेंट्स में जिनको पहले कभी भी डायग्नोज नहीं हुआ था कि उनको डायबिटीज है, बट सिंस कोविड के प्रोटोकॉल में वी हैव टू डू देयर ब्लड शुगर लेवल्स, वी हैव टू चेक देयर HbA1c लेवल्स के उनका ब्लड शुगर लेवल क्या है, उस टाइम पे पता चलता है कि उनको डायबिटीज है फर्स्टली. सेकेंडली जब हम चेक करते हैं, काफी बार होता है इट्स अ रिसेंटली डेवलप्ड डायबिटीज, and this is what virus is doing to the body, कि virus can trigger your body to increase their blood sugar levels. So अगर किसी के भी फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है, you are at a higher risk of getting your high blood sugar levels. So herein आपको अपना शुगर लेवल्स भी चेक करवाते रहना है, जिससे कि हमें पहले से पता हो कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड है और हमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती. So ये पहली चीज है, डायबिटीज कैन हैपन. सेकेंड थिंग इज हाई ब्लड प्रेशर कैन ऑल्सो हैपन. अगर ब्लड शुगर लेवल्स आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है. अगर ऑलरेडी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उसके साथ में भी ये चीज हो सकती है, नहीं तो ये नई बीमारी भी हो सकती है पोस्ट कोविड. स्किन ड्राइनेस इज हैपनिंग टू लॉट मेनी पेशेंट्स. अब स्किन ड्राइनेस क्यों? क्योंकि आपने ये जो मेडिसिन यूज करी या आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया, उनका भी एक साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं रह जाता है. many people, many doctors give steroids here. जिनको फीवर आराम नहीं आता, फीवर में या खांसी ज्यादा रहती है, ओल्ड एज ज्यादा है, रिस्क फैक्टर अगर ज्यादा है, तो यहाँ पर ये जो उसका साइड इफेक्ट है ये आपकी स्किन पे शो कर सकता है, which is skin dryness. So it can happen specifically around the cheeks, जो कि ज्यादातर पेशेंट्स बताते हैं, स्पेशली दे कैन फील देयर अराउंड द चीक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, नहीं तो हैंड का जो चिन एरिया है, यहाँ पर भी यू कैन फील दिस ड्राइनेस हियर. Mucormycosis, as people know that this disease has become more deadly than COVID. क्योंकि कोविड एक अलग से बीमारी थी, ये पेंडेमिक चल ही रहा था, सेकेंड वेव आ गया, बट अगेन ये जो नया डिजीज जो बीच में आ गया, दिस हैज हार्म्ड द बॉडी, दिस हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग अ वे ऑफ पैनिक हियर. ताकि पहला तो हम इससे बच भी जाएं, आई विल डिस्कस अबाउट दिस, एंड एट द सेम टाइम हम क्या प्रिकॉशन ले जिससे कि हम इससे बचे रह सकें. So first of all, इसमें भी mucormycosis can happen to patients who were COVID positive. Up till now, अब तक जितने भी patients mucormycosis के आए हैं in the research right now are COVID positive only. Like they occurred this problem after getting COVID. COVID से recovery हो गया, उसके बाद mucormycosis हुआ. पहला चीज. दूसरा चीज, you had taken lot many steroids, या steroids का overdosing था, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लिया, हॉस्पिटल एडमिशन का हिस्ट्री था, देन दिस कैन हैपन. एंड एट द सेम टाइम इम्यूनिटी अगर बहुत ज्यादा आपका कम है, तो इम्यूनिटी कम मीनिंग ऑलरेडी किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है, या किसी का ऑलरेडी कोई स्पेसिफिकली इम्यूनिटी के लिए अगर किसी की कुछ मेडिसिन चल रही है, दोज पीपल आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज विच इज कॉल्ड ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस. सो दिस डिजीज कैन डेवलप आफ्टर कोविड, and the way to come out of it, कि जिससे हम बचे रह सकें, we will discuss in the coming up slides ahead. White fungus और yellow fungus. अब ये mucormycosis तो था ही जो black fungus कहा, then again नई चीज आ गई, white fungus, yellow fungus. देखा जाए तो ये जो fungus होते हैं, any kind of funguses, they are there in the air. Whenever you get a moisture, like हमारी skin में नमी अगर हो गई, या हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, या हमारी बॉडी में
जिसे हम कहते हैं फाइटिंग मैकेनिज्म, वो हमारा कम हो गया, then this fungus are the first ones to attack your body. First are the fungus, second is viral, and then bacterial. So this is how step by step this things can affect your body. So specifically people जिनको रिंगवर्म का हिस्ट्री है, जैसे दाद जिसको हम कहते हैं, बॉडी पे स्पॉट्स, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको डायबिटीज ज्यादा है, स्टेरॉइड्स अगर लिया है, तो उनमें ये रिस्क होने के चांसेस है. Alopecia. What do we mean by alopecia? So alopecia is basically nothing but hair fall, which is happening after COVID. COVID के बाद में बहुत लोगों को हो रहा है, like they are having bunches of hair loss. This is the reason for this is basically पहले जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया उनका साइड इफेक्ट्स, एंड एट द सेम टाइम इम्यूनिटी कम हो गई तो बॉडी में मिनरल लॉस या प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है. हेयर आर प्रोटीन्स ओनली, तो ये लॉस होना चालू हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन एलोपेशिया होता है. क्रॉनिक फटीग जैसा मैंने पहले वाले स्लाइड्स में बताया कि ये मसल्स में अटैक करता है वायरस, तो इन द सेम वे इट इज क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ वीकनेस. फटीग मीनिंग वीकनेस. सो ये लंबे टाइम तक फटीग रह सकता है या थकान रह सकती है आपको. दिस इज अ डिजीज दैट इज डेवलप्ड अ स्टेट ऑफ पैनिक और एंजाइटी. अब जो एंजाइटी है, पैनिक है, ये पहले भी था, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट जब बीमारी नहीं होती तब भी हम स्टेट ऑफ पैनिक में रहते हैं कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, नेक्स्ट व्हाट टू डू. व्हेन वी गेट द इलनेस, जब पॉजिटिव आ गया तब भी वी आर इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी. बट मेनी पीपल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम COVID also, they have the state of anxiety here. अब anxiety meaning क्या? So whoever were admitted in the hospital, so hospital के बाद का जो आपका mental status होता है, आपका जो way of reaction होता है, आपका state of anxiety जो होता है, वो double हो जाता है, because there you have very less people to boost up your mental health. But still requiring this is अगर severe intensive care हो गया, like पहले इतना कभी आपने टेस्ट नहीं करवाए, पहले कभी HRCT नहीं हुआ, पहले इतना कुछ नहीं हुआ, तो this causes a trauma to you, and that is the reason it disturbs your mental health. So this can happen after COVID, and it in case if anybody was having any symptoms earlier, like पहले से मुझे समझो एलर्जी का प्रॉब्लम था, लाइक छींके जुकाम अगर मुझे पहले से थी, तो जैसे ही मैं कोविड से रिकवर होती हूँ उसके बाद सेम मेरी जो एलर्जी है वो डबल हो जाएगी या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. और वो क्यों बढ़ेगी? बिकॉज व्हेनेवर योर इम्यूनिटी ड्रॉप्स डाउन, उस टाइम के स्टेट के बाद में जब इम्यूनिटी बढ़ने की कोशिश करते हैं या बॉडी पूरा क्राइसिस के लेवल पे है, वहां पर पुरानी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में थी. तो दिस इज व्हाट कैन हैपन, और दिस आर द डिजीजेस व्हिच कैन डेवलप आफ्टर कोविड. फर्स्ट ऑफ ऑल इज डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर कैन हैपन, स्किन ड्राइनेस कैन हैपन, म्यूकोरमाइकोसिस कैन हैपन, व्हाइट फंगस और येलो फंगस, एलोपेशिया व्हिच इज हेयर फॉल, क्रॉनिक फटीग, पैनिक एंजाइटी एंड इंक्रीज इन अर्लियर सिम्टम. What should we do now? अब हमने वो तो देख लिया, कोविड ने क्या किया, कोविड से सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, डिजीजेस क्या पैदा हो रही है. वी हैव लर्न्ड एंड सीन एवरीथिंग. अब हमें करना क्या है? एवरीथिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स दैट हैव कम अप. अब जो जो चीजें मुझे आई है या हुई है उसी के हिसाब से मैं वर्कअप करूंगी यहाँ पे. सो पहला वर्कअप मेरा होगा वर्किंग फर्स्टली ऑन आवर इम्यूनिटी. एज आई टोल्ड यू, COVID is directly affecting your immunity. Immunity कम है तो भी COVID होगा, COVID होने के बाद भी immunity कम हो जाएगी. Why? Because your immunity, your cells have worked up against the virus ताकि ये जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी से चले जाए. So the immunity gets exhausted here. आप समझे, कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में आया है and the body is constantly trying to push it away. एंड इसी वे में ये क्राइसिस के स्टेट में आता है और इम्यूनिटी कम हो जाती है आफ्टर कोविड. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्टली वर्किंग अपॉन द इम्यूनिटी. आई विल डिस्कस व्हाट टू डू हियर. एंड सेकेंडली, मेंटेनिंग अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड. दूसरी चीज जो हमें करनी है इज
maintaining and balancing your mental status, because this is how our body function, or this is how our body works up. Why? Because ये आपकी बॉडी जो फिजिकल बॉडी है वो तो है ही, बट मेंटल स्टेट सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी बॉडी को. सो यहाँ पर हमें हमारा स्टेट ऑफ माइंड है उसको भी हेल्दी रखना है. सो वो हम कैसे रखेंगे? पहले हम समझते हैं कि फैक्ट्स क्या क्या है, कि कैसे ये मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है. सो मेंटली लोगों में स्ट्रेस हो रहा है कि अब कोविड तो हो गया, अब क्या मुझे दूसरी बीमारी का खतरा है, पहली चीज. दूसरी, अगेन हॉस्पिटल एंजाइटी, यानी हॉस्पिटल के बाद की एंजाइटी हो गई, या जो घर पे भी जिन्होंने रिकवरी करी है, दे ऑल्सो हैव द स्टेट ऑफ फियर कि क्या मैं पूरी तरीके से रिकवर हुआ हूं या हुई हूं या नहीं, क्या मुझे वापस से बीमारी होगी या नहीं. दिस हैपेंस. अ फोबिया इज कमिंग अप हियर. फोबिया हाउ कि अब फिर से मैंने अगर कुछ कर लिया या मुझे गले में खराश हो गई, अगेन क्या नई बीमारी तो नहीं हो रही. सो दिस इज अफेक्टिंग अ मेंटल स्टेट. And the topmost thing which is ranking here is a post-traumatic stress. How? Specifically in the last 1 month, we had a lot of death rates. Death rate were a lot of more. वो इसलिए भी था क्योंकि आपने ट्रीटमेंट जो था वो सही टाइम पे स्टार्ट नहीं किया. We had reached the hospital quite late. हॉस्पिटल लेट पहुंचे तो नेचुरल सी बात है, जो ट्रीटमेंट था वो भी लेट शुरू हुआ, मेडिसिन लेट शुरू हुई, प्लस मेडिसिन में भी कभी कुछ इंजेक्शन नहीं मिला, कभी बेड्स नहीं मिले, कभी ऑक्सीजन नहीं मिला. तो दिस इज व्हाट वाज अ ट्रॉमा टू पीपल. नाउ थिंग्स हैव बीन स्टेबल एंड हेल्दी ऑल्सो, मतलब थोड़ा धीरे धीरे करके सिचुएशन इज कमिंग अप इनटू कंट्रोल, बट स्टिल पीपल हु हैड सफर्ड इन द लास्ट 1 month or more than that have the state of post-traumatic stress, which is trauma has happened to them, and trauma के बाद का जो stress हो गया कि काश हमें दवाई सही टाइम पे मिल गई होती, काश हमें बेड्स सही टाइम पे मिले होते, काश हमने ट्रीटमेंट प्रॉपर स्टार्ट किया होता, या काश हमने ध्यान दिया होता. So this is what is affecting your state of mind, and हर चीज का solution इसमें specifically to maintain your mental health is basically understanding the facts and awareness. So awareness तो है ही, कोविड क्या है पहला तो हम वो जान ले, प्लस फैक्ट्स जान लें कि क्या चीज है, क्या क्राइटेरिया है जहां पे मुझे एक्शन लेने की जरूरत है, और क्या ऐसे फैक्ट्स है जहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो ये फैक्ट्स अगर हम समझ लें तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू मेंटेन आवर स्टेट ऑफ माइंड in a very healthy way. Also, अगर कोविड से रिकवरी हो गई है, कोविड का ट्रीटमेंट हो चुका कंप्लीट, और उसके बाद स्टिल आप एंजाइटी या पैनिक के स्टेट में हैं, तो यहाँ पर भी एक वे है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेडिटेशन. Meditation is definitely going to help you to relax your mind and your body. Second thing here is exercise. तो exercise अगर आप properly follow करते हैं, आपकी body state अगर अच्छा है, physical state आपका अच्छा है, then it will definitely going to calm your mind, and taking out time with your family. Like COVID से recovery तो हो गई, but उसके बाद भी talk to somebody, talk to your family members how you are feeling. If you are feeling dull or depressed, आप बात करें, share your feelings with them, because जरूरी नहीं है कि आप many a times what happens, we feel dull and we don't share them. So instead of that, हम share करें, हम बताएं कि हम क्या feel कर रहे हैं, जिससे कि हम healthy state of mind maintain कर सकें. So the second thing I've cleared up how to maintain or keep a stable state of mind here. But coming to the immunity part, कि हम immunity पे कैसे workup करें, तो the way of boosting up your immunity are 3 ways here. पहले ऑलरेडी कम हो गया इसलिए कोविड हुआ, कोविड होने के बाद और कम हो गया. सो यहाँ पर हमें 3 चीजों पे वर्कअप करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज डाइट, सेकेंड medicines, and third is exercise. I'll come to each in the next few slides. Diet. I have not mentioned anything here in the diet, but there are lot many things to say here. अब diet में हमें काफी चीजों का ध्यान रखना है. First of all, जो पहली चीज जो यहाँ पर होगी, we have to include 6 taste or flavors.
मीनिंग जो कि हमारे टेस्ट होते हैं, स्वीट, सार, स्पाइसी, क्रीमी, जो हमारे फ्लेवर्स जो होते हैं, ये हमारी डाइट में होने चाहिए, पहली चीज. सेकेंड थिंग्स इज कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी देयर इन योर डाइट, जिससे कि आपका हार्ट भी हेल्दी रहे और बॉडी भी हेल्दी रहे एट द सेम टाइम. And third thing here is we have to include sour and bitter foods here. अब sour and bitter foods का meaning होता है खट्टे और कड़वे foods. खट्टा meaning vitamin C and कड़वा meaning these काढ़ास and these natural जो हमारे घरेलू इलाज होते हैं, that has to be included in your diet so that we can balance them all and maintain. Have to be mentioned here. First of all, I told you 6 taste and flavor, sour and bitter foods, and thirdly were colorful fruits and vegetables. So this has to be in the diet. But the role of all this is firstly to maintain 5 things, which is water intake अच्छा रहे. पहला है water because हमारा 70% of body is constituted of water. So 70% बॉडी में पानी होता है, पानी अच्छा होता है तो रिकवरी फास्टर हो जाती है. सो वाटर इनटेक शुड बी देयर, विटामिन सी इनटेक शुड बी देयर जो कि फूड्स और वेजिटेबल में होता है. आयरन इनटेक शुड बी देयर. आयरन हेल्प्स टू मेंटेन आवर हीमोग्लोबिन लेवल. सो हीमोग्लोबिन अगर अच्छा है तो बॉडी में रिकवरी और जो ये वीकनेस वाला जो सिम्टम है ये बहुत जल्दी और बहुत फास्ट वे में हेल्प करेगा. At the same time, we have to balance our calcium levels जो कि डेयरी प्रोडक्ट से होता है, and proteins, क्योंकि जैसे हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा कि ये हमारे मसल्स को अफेक्ट कर रहा है, तो मसल्स को रिकवर करने का काम होता है प्रोटीन्स का. So these 5 things has to be included here. Firstly is water, second is vitamin C, iron, calcium and proteins. So proteins अगर आप natural protein कुछ नहीं खा पा रहे हैं, sprouts or something, you can include here. Either like protein powders can be included. Non-veg अगर खाते हैं तो eggs ले सकते हैं. This is how you can maintain or stabilize your diet. So the way after or post COVID care would be first of all with the diet. Second here comes is medicines. Medicines में हमारी multivitamins भी आती है जो कि हमें COVID के बाद लेना है. Though I have not mentioned here, but multivitamins are required post-COVID. Many people do not take them because उनको ऐसा रहता है कि हमें just हम recover हुए हैं COVID से, इतनी दवाइयाँ ले ली तो हमें और नहीं लेना. But this is for your benefit only. You have to take multivitamins here, and that too take it at least for a duration of 1 month or so, or maybe more than that. अगर सिम्टम ज्यादा थे तो ज्यादा दिन की जरूरत है, अपार्ट नहीं तो आप 1 मंथ भी लेंगे पोस्ट रिकवरी भी, तो भी इट इज गुड फॉर योर बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया मल्टीविटामिन. सेकंड इज विटामिन डी. अब विटामिन डी हियर इज वी कैन गेट इट फ्रॉम डायरेक्टली सनलाइट से मिलता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू विटामिन सैचेट्स और टैबलेट्स अवेलेबल इन द मार्केट. ये हम ले सकते हैं जिससे कि मसल रिकवरी एंड बोन हेल्थ स्ट्रांग हो जाए. So that can be taken. These 2 things can be taken from outside. And apart from that, here the role of homeopathy plays. जहां पर homeopathic medicines are working really well in recent and post-COVID cases. See, यहाँ पर mention करना homeopathy के बारे में वो ये है ताकि हम awareness create करें, लोगों तक पहुंचे और बताएं कि homeopathy में actually ऐसी medicines है which can recover you from COVID and also recovery के बाद भी जो symptoms रह जाते हैं, जो symptoms नए आ रहे हैं, उनमें भी recovery में help करती है ये medicines. Secondly, अगर आपने गलती से कोई steroids लिए थे during your treatment, so medicines, homeopathic medicines में ऐसी भी आती है which can cut the side effect of these steroids. So that can happen here. जिससे कि अगर स्टेरॉइड्स का कोई साइड इफेक्ट रह गया, जैसे मैंने बताया ड्राइनेस हो जाती है स्किन की, इचीनेस हो जाता है, सो दिस कैन बी कट ऑफ एंड बी स्टेबलाइज्ड. ऑल्सो वी कैन प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस फ्रॉम गेटिंग डेवलपिंग. लाइक म्यूकोरमाइकोसिस हमने डिस्कस किया क्या है ये बीमारी. फंगल इन्फेक्शन है बेसिकली, किस वे में एक्ट कर रहा है और कैसे अफेक्ट कर रहा है. सो अगर किसी को कोविड हुआ है, हॉस्पिटल एडमिशन हुआ था, उनका स्टेरॉइड्स का हिस्ट्री है, ये सारे फैक्टर्स अगर सब क्राइटेरिया में आ रहा है
तो यहाँ पर वी कैन गिव होम्योपैथिक मेडिसिन टू कट शॉर्ट दैट, जिससे कि शुगर लेवल्स भी बैलेंस हो जाए और ये जो नई बीमारी है ये नहीं हो आपको। एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग बीपी, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करेगा। ऑल्सो इट कैन बैलेंस योर ब्लड शुगर लेवल्स ऑल्सो। इट कैन हेल्प इन ट्रीटिंग एंजाइटी डिसऑर्डर। एज आई टोल्ड यू, मेंटल हेल्थ जितना डिस्टर्ब कर रहा है ये वायरस, उतना ही बॉडी हेल्थ भी डिस्टर्ब कर रहा है। सो herein there are medicines, homeopathic medicines, which can treat your anxiety disorders also. So we can start out with the medicine and accordingly help you along with that. I already told you how homeopathy helps. So homeopathy has no side effects. We have few prevention drops available. ये मैंने last जब session हुआ था आप लोग के साथ में last month, तभी I have discussed regarding prevention drops that these are immunity drops जो कि दिए जाते हैं बिफोर द इलनेस। अगर हम पहले से दे दें तो इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और आप बीमारी से बच सकते हैं। बट बीमारी हो भी गई उसके बाद भी इम्यूनिटी मेडिसिन दी जाती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड टू हेल्प देम रिकवर फास्टर। Also, homeopathy can be started on the first day of the symptom, can be taken along with other medicines, helps recover faster and prevents complication. And I think it is very, very helpful in COVID illnesses post and recent also, and helps your immune system to build up faster, cures your illness from the root cause. So this is how homeopathy is helping people in recent cases also and in post COVID cases also. So this is what we can do to our body. My next slide would be is exercise. As I told you, जैसे 3 चीजें हैं immunity boost up करने के लिए. First is diet, second is medicines, and third is exercise. So exercise has to be included. At least 30 to 40 minutes of exercise should be there. अगर आप पूरा हफ्ता भर भी नहीं कर पाते हो, like if you cannot work up for like 7 days in a week, but at least you can work 5 days in a week. So यहाँ पर हमें exercise करनी है to maintain our overall health. Also, exercise will include, first of all, breathing exercise. Breathing for the health of the lungs. किसी को कोविड हुआ है उनके लिए भी, कोविड नहीं हुआ है उनके लिए भी, एंड एट द सेम टाइम आप योगा, जुम्बा, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल टू यू वो हम कर सकते हैं. ऑल्सो proning postures. Proning posture are done to maintain oxygen levels. So oxygen level जिनका अभी भी disturbed है या normal level पे नहीं आया है, they can follow proning posture. Along with that, specifically, I advise people to do ballooning, like balloon exercise. Balloon exercise में क्या होता है? Like whenever it's a balloon only, what we have to blow out for the capacity of the lung. तो आपको बस एक balloon ही फुलाना है so that your lungs tend to expand and relax at the same time. So this is also a exercise for your respiration or for your lungs, and other exercises are done for your physical activity. So I think I have discussed here regarding boosting up the immunity. My last slide would be regarding our details only. Yeah, so these are the details of our clinic, which is at Vaishali Nagar in Jaipur. Also, it is stated our phone number is also available. So whosoever wants to connect with us or wants any treatment from us or wants to share their query also, you all can definitely get in touch with us. So I think I'll hand over to you only now. आप लोग में से किसी को भी कोई questions हो, कोई query हो, तो next few minutes या next few जो भी time हमारे पास है वो आप लोग के लिए रखें ताकि मेरे तरफ से कोई भी help हो सके, that I can help you out. किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yeah, hello. Ma'am, you can stop sharing the screen so that you will be visible to all. Yeah. Yes, Babita ma'am, please पूछिए. मैम जो मेडिसिन पिछली बार पूछे थे हम लोग एल्विनस एल्बम, Yes. प्रिवेंशन के लिए, वो क्या चाइल्ड्स को भी दे सकते हैं? Yes, definitely it can be given to childs. आप बच्चों को दे सकते हैं. माने बच्चों का लेने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है compared to adults.
इन्फेंट है 5-6 महीने का। नहीं, इन्फेंट्स को नहीं देते हैं। Okay. 1 ईयर प्लस बेबी को आप दे सकते हो, बिकॉज 1 ईयर से छोटा बच्चा एनीवेज ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, तो मदर से उसको इम्यूनिटी आई जाती है। इनफैक्ट मदर कैन टेक इट सो दैट बच्चे को इम्यूनिटी चली जाए। ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल कैन टेक इट, बट बाकी छोटे बच्चे को नहीं देना है। 1 ईयर प्लस बेबी कैन बी गिवन। Okay, thank you, ma'am. या हेलो मैम। या हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। मैम, नॉर्मली होम्योपैथिक में मैंने ऐसा सुना था कि आर्सेनिक L30 और जेलसीमियम 30 ये 3 days in a month लेना चाहिए, तो ये किस तरीके से और कैसे लेना चाहिए? सी ये दो जो मेडिसिन है ये स्पेसिफाई कर दी गई है, आर्सेनिक और जेलसीमियम, बट हर केस को जेलसीमियम रिक्वायर्ड है, दैट आई यूजुअली डू नॉट प्रेफर आर्सेनिक, दो इट हेल्प्स। आर्सेनिक फिर भी हम एडवाइस करते हैं कि जैसे आप ट्वाइस अ डे ले लें फॉर 3 days। मॉर्निंग वाला एम्प्टी स्टमक रहेगा एंड इवनिंग बिफोर फूड होगा। दिस कैन बी टेकन 3 days in a month, but gelsemium I do not prefer to repeat on a regular basis. Instead of that, there are other booster medicines also, जैसे इन्फ्लुएंजिनम है, ब्रायोनिया है, मल्टीपल और भी बहुत सारी मेडिसिन आती है, तो वो एक इम्यूनिटी बूस्टर हो जाता है साथ में। दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। मतलब अगर आपकी एलर्जी की हिस्ट्री है क्या, आपके आसपास कोविड केसेस है क्या, आपको बीपी शुगर थायराइड कुछ है क्या, उसके अकॉर्डिंग दूसरा डोज डिसाइड किया जाता है वेदर टू टेक दैट और नॉट, बट आर्सेनिक कैन बी सेफली गिवन टू ऑल। मैम, अगर कोविड हो चुका है, लाइक मैं और मेरी फैमिली रिकवर कर गई है कोविड से, तब भी हमें लेनी चाहिए क्या ये मेडिसिन? आर्सेनिक स्टिल आप ले सकते हैं, बट जो मेन इम्यूनिटी बूस्टर होगा वो केस टू केस ही डिपेंड करेगा, वेदर यू आर टेकिंग बिफोर कोविड, लाइक कोविड हुआ या नहीं हुआ उससे पहले, या पोस्ट कोविड भी अगर लेना चाहते हैं तो भी आपको वो एक बार आपको अपने सिम्टम्स बताने हैं कि बचा कुचा क्या है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड नहीं होता तब तो कोई सिम्टम नहीं है, बट कोविड के बाद में जरूर काफी सारे सिम्टम्स रह जाते हैं, सो वी हैव टू वर्क अप ऑन दी अदर सिम्टम्स ऑल्सो। तो ये जनरलाइज्ड मेडिसिन यूजुअली डू नॉट वर्क। आर्सेनिक फिर भी, बिकॉज आर्सेनिक अगेन ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है यहाँ पर भी हेल्प कर रहा है, सो अगेन इट इज कम अप इन द प्रोटोकॉल, लाइक यू कैन कंटिन्यू विद आर्सेनिक, बट द अदर मेडिसिन वुड बी द इम्यूनिटी बूस्टर वन, जो कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको सिम्टम है नहीं है, करंटली क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ओके, थैंक यू मैम। और किसी के कुछ क्वेश्चन हैं? हेलो हेलो, हाँ जी। मैम, जैसे कोविड पेशेंट है वो रिकवर हो गया तो उसका पेट डिस्टर्ब रहता है, मतलब कुछ भी खाते हैं मोशन चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, सी पोस्ट कोविड है और उनको स्टमक इश्यू हुआ है, तो यूरिन हम 3 चीजें फॉलो कर सकते हैं। पहला चीज है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हमारे नेचुरल प्रोबायोटिक जो कि दही में होता है, उसके अलावा टैबलेट फॉर्म्स के भी आते हैं बाहर अवेलेबल, जैसे स्पोरलैक, एंट्रोजर्मिना, बहुत ही कॉमनली अवेलेबल प्रोबायोटिक्स है। दिस कैन बी गिवन, जो कि आप लगभग 5 से 7 दिन तक दें और फिर आप स्टॉप कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो होगा, उनका डाइट अभी भी सॉफ्ट डाइट होगा, बिकॉज इंटेस्टाइन्स उतने हेल्दी नहीं हुए हैं सो दैट वो डाइजेस्ट कर पाए, तो डाइट उनकी सॉफ्ट ही रहेगी। ज्यादा हैवी फूड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब मिल्क, स्पेसिफिकली मिल्क, दही या छाछ, बटर मिल्क वो तो दे सकते हैं, लेकिन आप मिल्क नहीं देंगे, हैवी फूड्स नहीं देंगे। एंड थर्डली यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं अपन, जिससे कि उसकी रिकवरी कंप्लीटली हो जाए, मतलब स्टमक जो डिस्टर्ब हुआ है, गट हेल्थ हुआ है, वो कंप्लीट ही ठीक हो, ऐसा नहीं आगे जाके भी स्टमक इश्यूज चलते जा रहे हैं, वो चीज ना हो। तो मैम, आप मेडिसिन, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन आप प्रेफर कर, मतलब बता सकती हैं, रिकमेंड कर सकती हैं क्या? सिर्फ एक सिम्टम के हिसाब से नहीं होता, अब इसमें भी यही होता है। आपसे बात करने के बाद आप बात करके डेफिनेटली करवा लीजिए, क्योंकि स्पेसिफिकली स्टमक के लिए लगभग 10-15 मेडिसिन है, तो वो सिम्टम क्या है, लूज कितने हैं मोशन, दिन भर में कितने बार जाते हैं, मोशन में कलर में चेंजेस, ब्लड आया क्या, म्यूकस आया, ये सारी चीजें देख के एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन गिव। ओके, थैंक यू। या मैम, एक चीज और पूछना था, जैसे
रिकवरी के बाद मतलब रिकवर हुए हुए अराउंड नेगेटिव रिपोर्ट आए हुए 15-20 डेज 25 डेज हो गए हैं, बट अभी भी हल्का सा हेवीनेस फील होती है चेस्ट में, ऐसा लगता है जैसे कोल्ड है, कंजेशन है। तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या एडिशनल कुछ लेना चाहिए? सी अगर चेस्ट में हैवीनेस है तो दैट मीन्स काफी बार होता है म्यूकस की वजह से भी होता है, तो सेकंड वे होता है बिकॉज ऑफ द लंग्स ऑल्सो, अगर निमोनिया डेवलप हुआ था या नहीं हुआ था उसके वजह से। सो यहाँ पर हम जो कर सकते हैं, पहला चीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो करना ही है। बलूनिंग का मैंने बताया, बलून एक्सरसाइजेस जो कि आपको एटलीस्ट दिन में 10 से 15 मिनट वो बलून का वो करना है, जो इनहेल करते हैं अपन नॉर्मली पार्टी में बलून जो फुगाते हैं वो चीज करना है। दिस विल एक्सपैंड योर लंग। Apart from that, there are few respiratory exercises are also available जिससे कि हमारा lungs अच्छा रहे। But this will depend on the HRCT report. अगर HRCT report खराब थी, lungs में निमोनिया बहुत ज्यादा था, तो ये आपको एक्सरसाइजर लेने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, घरेलू अगर करना है तो ये बलून वुड हेल्प यू। ऑल्सो प्रोनिंग पोस्चर्स फॉलो करें अभी भी, ताकि लंग्स पे किसी टाइप का जोर या किसी टाइप का प्रेशर नहीं हो। और म्यूकस अगर कॉन्स्टेंटली फॉर्म हो रहा है तो स्टीम और गार्गल उसे कंटिन्यू रखो, ताकि जो स्टीम से क्या होता है, आपका नेजल एरिया का जो म्यूकस है वो क्लियर अप हो जाए। बिकॉज मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपन, नोज से ये जो म्यूकस है ये गले में गिरता है एंड यू फील समथिंग हैवी इन द थ्रोट और चेस्ट, विच इज नॉट रिलेटेड टू चेस्ट बट इट इज रिलेटेड टू योर नोज। सो वो चीज भी एट द सेम टाइम कंटिन्यू करनी है। तो एटलीस्ट twice a day or once a day you can follow steaming and gargles, और बाकी जो है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये जनरल वे है फॉलो करने का। स्टिल ये सब हेल्प नहीं करता, सो मेडिसिन आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अप। थैंक यू मैम। ओके, और किसी के कुछ क्वेश्चंस? और किसी को पूछना है कुछ?